Hello class. So students, let's start today standard 7th SCF and LCF. As you know that we are continuing our chapter SCF and LCM. In previous class students, we have done how to find out the highest common factor or greatest common divisor by the method of prime factors method. In this video we will see to find out the highest common factor by using division method. How will find out the highest common factor by using division method? There is a rule students, and it is very clear with the example. I will tell you the rules by using the small example. So let us see how we will find out the highest common factor by using division method. Students, rule number 1 is that 25 and 140 we need to find out the SCF. So what we have to do by using division method? So what is our first step? First step is that divide the bigger number by smaller one and bigger number. So which one is your bigger number? 140. So we know that 140 is bigger than 25. Even students, sometimes they give in terms of numerator and denominator. तो उसमें आपको division directly नहीं करना है, उसमें आपको check करना है which one is the bigger number. So after that what will you have to do? Divide the bigger number by smaller one. चलो division कर लेते हैं. 140 divide by 25. As you know that 25 टेबल हम लोग रीड करेंगे. 25 5 are 125 and 25 6 are 150. 25 5 हम लोग करेंगे. The answer we are getting 125. Now we'll do the subtraction part. 10 minus 5 is 5. Then 3 minus 2 is 1. Then 1 minus 1 is our 0. Now class, important is that next step is what? Divide the previous divisor. What is the previous divisor? हमारा previous divisor अभी कौन है? 25 है. Divide the previous divisor. अभी इसको divide करना है, 25 को divide करना है by the remainder. What is our remainder part over here? This part is known as our remainder part. Remainder से previous one को divide करना है. Previous one divisor कौन है? This part is our divisor. ये हमारा डिवाइज़र हो गया. सो डिवाइड द डिवाइज़र विद द रिमाइंडर वन. सो दिस इज़ आवर 25. सो 15 1 जा 15. अगेन विल डू द सब्ट्रैक्शन. एक बार हम लोग वापस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. दिस वाज द स्टेप नंबर 1 एंड दिस वाज द स्टेप नंबर 2. और ये स्टेप नंबर 2 के जैसा हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है. सो 5 minus 5 is 0. 2 minus 1 is 1. सो अगेन दिस वन इज़ आवर रिमाइंडर पार्ट. ये हमारा रिमाइंडर पार्ट हो गया. बट स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर के लिए जो पार्ट बनेगा हमारा, फॉर दिस रिमाइंडर दिस इज़ आवर डिवाइज़र. ये हमारा किसका काम करेगा? अभी दिस वन विल वर्क एज अ डिवाइज़र. ये अभी हमारा डिवाइज़र जैसा काम करेगा. नाउ वी विल डिवाइड 15 by 10. 15 को 10 से डिवाइड करेंगे. 10 1 जा 10. अगेन हियर वी आर गेटिंग 5 minus 0 is 5. 1 minus 1 is 0. Now next what will the step? ये step हमें continue करना है. Now again we will divide. This is now we will work as a divisor. Sometimes ये remainder का काम करेगा, sometimes ये divisor का काम करेगा. But ये process हमें कब तक करना है? जब तक हमारा remainder part 0 नहीं आ जाता है. So what is written the fourth step? Fourth step is written that continue like this till the remainder becomes 0. हमें कब तक करना है? जब तक हमारा रिमाइंडर पार्ट 0 नहीं हो जाता है. सो 15 minus 10 this become 5. Again we'll divide this 10 by 5 and we are getting over 5 2s are 10. 5 2s are 10. अभी जहाँ पे 0 आना है वहाँ पे स्टूडेंट्स यू हैव टू बी स्टॉप. यहाँ पे स्टॉप हो जाना है. और जिस रिमाइंडर से आपको 0 मिला है, आपको ये रिमाइंडर से 0 मिला हुआ है. सो 5 2s are 10. यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. द डिवाइजर इन द डिवीजन इन विच द रिमाइंडर पार्ट इज 0. द डिवाइजर इन द डिवीजन, ये डिवीजन में जिस डिवाइजर से वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 0 इज़ द SCF ऑफ द गिवन नंबर. दैट्स ऑल. इस बस हमें इतना ही करना है. जिस डिवाइजर से हमें जो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, सो आप लोग यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे SCF क्या हो जाएगा? आवर SCF विल बिकम SCF इक्वल्स टू 5. SCF क्या हमारा हो जाएगा? 5. किसका? 25 और 40 का जो SCF होगा हमारा ये 5 हो जाएगा. दैट द सिंपल स्टेप है स्टूडेंट्स. आपको कंटिन्यू करना है एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल. एक छोटा सा एग्जांपल था, मैंने आपको अभी बताया. कम टू द प्रॉब्लम सेट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द
प्राइम फैक्टर्स मेथड जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 1, 275 and 525. What was the first step? First step was that divide the bigger number by smaller one. In this step, A step में which one is the bigger number? 525 is bigger than 275. 525 किससे बड़ा है? 275 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है? We will divide the bigger number by smaller one. We have to divide the bigger number by smaller one. 525 we will divide it by 275. Students, what you have to do, या तो हमें इसके इक्वल चाहिए या तो इससे नियर बाय नंबर चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, हम लोग इसका एक टेबल बनाते हैं। अभी टेबल कैसे बनाएंगे? एज यू नो दैट आपको छोटा सा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 275 मल्टीप्लाई बाय 1 यू आर गेटिंग 275। स्टूडेंट दिस लॉजिक कम टू इन स्टैंडर्ड 5th में आता है, जो हम लोग स्टैंडर्ड 5th में पढ़ाते हैं कि आप टेबल किस तरह से बना सकते हो बाय यूजिंग ए स्मॉल मल्टीप्लिकेशन। Then 275 multiply by 2, तो whatever we are getting over here, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? We are getting over 550 मिल रहा है। हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे? 550 मिल रहा है। So one time जाएगा, so this become 275. Now next we are going to do the subtraction. 5 minus 5 is 0, 12 minus 7 is 5 and 4 minus 2 is 2, 250. Now this one is 250. Now we will divide the 275. Now A part जो हमारा डिवाइजर स्टार्टिंग में, this one is our second step है। ये जो हमारा डिवाइजर है स्टेप में, ये हमारा अभी क्या हो जाएगा? क्वोशंट बन जाएगा। So 275 divided by 250. So how many times? Obviously one time, तो this become your 250। ये हमारा स्टेप होगा। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट। हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 5 minus 0 अगेन 5 देन 2 देन वी आर गेटिंग 0। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड 250। अभी किसको डिवाइड करना है आपको? 250 को डिवाइड करना है। किससे? 25 से। 25 1 जा 25 और एक 0 यहाँ पे लगा दो, तो 25 10 जा 250 हो जाएगा माइनस, एंड यू आर गेटिंग ओवर ईयर 0। सो रिमाइंडर पार्ट हमें तब तक कंटिन्यू करना था टिल द टाइम वी आर गेटिंग ओवर ईयर, जब तक हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था। हमारा जो पार्ट रिमाइंडर है, अभी क्या आ गया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर पार्ट वी आर गेटिंग ओवर ईयर 0। नाउ वी आर गेटिंग 0 रिमाइंडर बिकॉज ऑफ द 25 एंड स्टूडेंट दिस यूज योर 25 आपका SCF बन जाएगा। SCF is 25, SCF of 275 and 525। और क्या बोला है इस क्वेश्चन में? आई रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्या करना है? इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? हाउ विल राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म? व्हाट यू हैव टू डू, ये जो दोनों नंबर है 525 275, पहले तो कौन से फॉर्म में लिखा गया है? 275 डिवाइड बाई 525। तो पहले आपको ये नंबर को लिख लेना है, 275 डिवाइड बाय 525। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? 275 को डिवाइड बाय 25 कर दो। अगर HCF से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। एंड 525 डिवाइड बाय 25 HCF से आपको डिवाइड करना है, विच इज़ इक्वल्स टू, और हम लोग इसको थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली बता दे रहा हूँ, इट शुड बी डिवाइडेड बाय HCF। किससे डिवाइड होना चाहिए? HCF से। और 525 इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय HCF। अगर किसी भी HCF से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है। तो डिवाइड बाय 25 किया तो हमें क्या मिल जाता है? 11 डिवाइड बाय 25। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 11 डिवाइड बाय 21। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। Second question is given that 76 divided by 133. So what we have to do, which one is the greater? first step पे आ जाते हैं। 133 is greater than 76. So we will divide 133 by 76 and we will form the table 76. 76 टेबल कैसे बनेंगे? 76 1 जा 76, 76 multiplied by 2 is 152. So we are getting 2 times is equals to 152. So we will take over here only one time. So this become 76 1 ja 76 and we'll do the subtraction. 13 minus 6 become 7
and 12 minus 7 become 5, and it is the 57. Now we will divide this 76 by 57. So we will divide this 76 by 57. 57 1 ja 57. Again we will do the subtraction. 16 minus 7 is 9 and 6 minus 5 is 1. Now next step is which is very important. Again we will divide this 57 and 19 3s are 57 as we know table. So we are getting over this part over here 0. अभी यहाँ पे हमारा ये 0 आ गया. Now this part is 0. So what is your SCF? आपका SCF क्या बनेगा? SCF equals to 19. आपका SCF क्या होगा? 19. So what is the simplest form? Simplest form equals to 76 divided by SCF. Then we have to divide 133 divided by SCF. So which is equals to 4 divided by 7. So 4 divided by 7 is the simplest form. Third one is given there 161 divided by 69. Now what is our concept? हम लोग solve कैसे करेंगे इसको? Solve करेंगे which one is greater? 161 is greater than 69. So 161 divided by 69. 69 will form the table over here. Table बना लो आप लोग यहाँ पे 69 का. 69 1 ja 69. Then multiply by 2. 69 multiply by 2 138, and 69 multiply by 3 207. So students, how many times this will go? 2 times. So we are getting over here 138. So subtraction, after subtraction we are getting over here 3, and 5 minus 3 is 2. Now we'll divide this 69 by 23, and 23 3s are 69, and we are getting over here 0. So our SCF is 23. तो हमारा SCF क्या हो जाएगा? SCF equals to 23. Now simplest form, what will the simplest form over here? Simplest form equals to 161 divided by 23 and 69 divided by 23. स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म जरूरी नहीं हमेशा आप इसी फॉर्म में लिखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हियर दे हैव गिवन द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. वी आर राइटिंग द आंसर इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So 23 7 ja is 161 and 23 3s are your 69. Hence 7 upon 3 is the simplest form of 161 divided by 69. And this is the way to find out the SCF and GCD of the number.